अभिमान, नारी तू एक कल्पना है, नारी तू है एक वरदान, नारी तू जननी है, नारी तू है एक पहचान। दो छोटी सी पंक्तियां मेरे अपने शब्दों में। एक और सुनाना चाहूंगी, ये जस्ट मैंने अभी लिखा। ना तू गिरना, गिरे तो तू उठ जाना, ना तू घबराना, हमेशा आगे बढ़ते जाना और मुस्कुराते रहना। अपनी मंजिल पाने से पहले, अपनी मंजिल पाने से पहले ना तू हार मानना, ईश्वर सदा तेरे साथ है, बस तू भरोसा करना और आगे बढ़ते रहना। Thank you so much. So, just giving a brief introduction about myself. I'm Nimero Bania. So basically, I'm from Delhi, and my qualification includes I'm MS from BITS Pilani, and I'm MBA in International Marketing. I have IT background. I am in corporate background from last 15 years. Few of my organizations include Wipro Technologies, Infosys, and currently I am associated with HCL Technologies as Service Integration Manager. So this was one part of me, and on the other front, I am inclined towards numerology. I'm a numerologist, I'm a Reiki healer, I'm a counselor, I'm also a life coach, I'm a corporate anchor. I have done more than 100 corporate events till yet. And recently I got like appreciation from US. I also perform international events. I'm also associated with media for different channels like News India, Sardham Sangam, Sahara News, India Voice News. So like coming, my life coach series is just about to come. Recently I performed a show known as Rishton Ke Dhage on the event of Karwa Chauth. After that, I performed various programs on Diwali, and apart from that, in my life coach series, I'm going to work on the people, on the women, like who are not able to come up in the society besides having multiple talents due to any of the reason. So this was my media front also. So that was the brief introduction about myself. Thank you. थैंक यू। इसके साथ ही एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जब आपने अपना ये करियर चुना था, जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, स्ट्रगल लाइफ हर किसी के पास होती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टाइम था जब आपको जिसने आपको इंस्पायर किया है काम? So, like initially, as you all know, like every middle class family has its own level of struggles. Parents have pressure, to get married, to get yourself married, and apart from that, one side our career is there, and another side you see the marriage front. Lot of society taboos, like in India we have कि अगर थोड़े time तक भी like marriage नहीं होती है, so people start asking so many questions. But I always wanted to be different from the crowd. I always wanted to work on the concept of feminine inspiration in corporate also. I keep on motivating different people apart from like in my counseling, being a relationship counselor and life coach. So like बहुत सारी महिलाएं जिनके बहुत सारे जो अपने जीवन में बहुत कुछ जो है वो करना चाहती हैं, पर किसी ना किसी कारणवश कई बार जो है वो नहीं कर पाती हैं ड्यू टू एनी ऑफ दी circumstances. So मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी एस्पिरेशंस हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, आप उन पर बहुत ज़्यादा जो है आप उनको फोकस्ड रखिए, उनको रिविजिट करिए। प्रॉब्लम्स चैलेंजेस सबके लाइफ में आते रहते हैं और इनफैक्ट हमेशा आते रहेंगे, बट व्हाट वी हैव टू डू इज वी डोंट हैव टू डेविएट आवर फोकस और वी डोंट हैव टू डेविएट आवर एनर्जीज। अगर आप लोग इतने क्वालिफाइड हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी सफरिंग अगर आपकी जिंदगी में है, तो आपको यू शुड कम अप एंड स्पीक वेयर यू फील दैट यू कैन टेक योर टॉक टू योर टॉक हैज सम वैल्यू। और अगर आप ठीक हैं तो ईश्वर जो है, जो डिवाइन है आपको, वो आपको लाइफ में जो है हमेशा सपोर्ट करेगा। लेकिन बोलना आपको खुद ही पड़ेगा। अगर कुछ भी आपके लाइफ में आपको लगता है कि आप सफ़र कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि आप लोग प्लीज़ चुप ना रहिए और आप अपनी सिचुएशन को एक्सप्रेस कीजिए टू द राइट पीपल। एंड डेफिनेटली अगर आप एक स्टेप उठाओगे तो गॉड 100 स्टेप्स आपके साथ उठाएंगे। तो ये मेरा मैसेज है कि प्लीज़ डोंट सफ़र इन योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, लिव योर एस्पिरेशंस। दिस टाइम विल नॉट कम।
प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, बट देन यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड. यू नेवर हैव टू गिव अप इन लाइफ, नेवर गिव अप. बस जोरदार तालियां हो जाए everyone. गोनिया सीजन 2 चैप्टर 3, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि ये कार्यक्रम सोसाइटी को किस तरह से मैसेज देते हैं, और ये वाकई मतलब इसकी जब सोसाइटी में ऐसे इवेंट्स जाते हैं या फिर लाइव जब सोशल मीडिया के थ्रू भी हर किसी तक पहुंचते हैं, तो बहुत सारे ऐसी फीमेल्स पे भी पहुंचते हैं जो शायद अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं हार चुकी हैं, तो उन्हें मोटिवेट ये सारी चीज़ें करती हैं. Yes, definitely. This is a very good initiative by Anurag Goyal ji and from Shambuka Foundation. जो बहुत सारे females को अपनी लाइफ में एक मैसेज देता है कि हमें जीवन में कुछ हटकर करना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है. बहुत सारे राइटअप्स में न्यूज़पेपर्स में देखती रहती हूँ जिसमें मैं हमेशा यही एनकरेज करती हूँ सभी फीमेल्स को कि क्रॉस किलिंग जो एक कॉन्सेप्ट है, हमें किसी से कोई जेलस नहीं करना, हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं है, हमें सबको साथ लेके चलना है. वी हैव टू अपलिफ्ट पीपल, वी हैव टू अपलिफ्ट द वुमेन नेक्स्ट टू मी. मतलब अगर हम खुद एनकरेज हो रहे हैं तो हमें अपने साथ 1000 और लोगों को भी एनकरेज करना है, हमें अपने जो है बाय प्रोडक्ट्स बनाने हैं. वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनीवन, कोई जेलसी नहीं, सिर्फ अपने साथ हमें क्योंकि जितना हम दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं जीवन में, उतना ईश्वर हमें अपलिफ्ट करता है, उतना यूनिवर्स हमें अपलिफ्ट करता है. व्हाट वी गिव इज व्हाट वी रिसीव इन मल्टीपल फोल्ड्स फ्रॉम यूनिवर्स. तो आप लोग अपने साथ में, यही मेरा सबको मैसेज है, बीइंग अ लाइफ कोच, बीइंग